Assalamu alaikum, dear students. Today I am in front of you to discuss the sample paper of the NEET. The most important thing is that this paper is text oriented, NCRT oriented, because my strong belief is that NEET paper revolves around the NCRT. So let us go. Let us discuss your paper, and the expectations are that paper will be oriented about this paper. So let us go to question number one. So our question number one is about the magnetic moment. You can read the question. The question is spin only magnetic moment is same for which of the following ions? All of us know we have a particular formula for spin magnetic moment, that is mu s is under root of n into n plus 2 bm Bohr magneton. What is essential is this n. If this n, that is number of unpaired electrons, is same for two species, obvious is that this spin magnetic moment will be same. Now we'll look at these options. Titanium is there, chromium is there, 2 positive, manganese 2 positive is there, iron 2 positive is there, scandium 2 positive is there. The close options are two, chromium and the iron. The atomic number of chromium, all of us know, is 24, and chromium has got an exceptional configuration, and iron has atomic number of 26. We can write the configurations of chromium and iron first. Chromium electronic configuration is argon 3d 4s 4s1 3d5. Okay, but we have chromium 2 positive ion. The configuration will be argon 3d 4s0. ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन डी में से चलेगा तो 4 आएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो 4 आ गए जो डी ऑर्बिटल में है। इसके बाद हम आयरन में देखेंगे। आयरन में Fe2 पॉजिटिव में फर्स्ट विल सी आयरन की कॉन्फ़िगरेशन। इट इज argon 3d4s 4s2 3d6. Now what we have to do, we have to remove the two electrons, because we are going to discuss the spin magnetic moment, spin only magnetic moment of Fe2 positive. For this we'll write argon 3d4s is 0 now, because two electrons are lost, it is 3d6. But importantly, when we draw the d orbitals of the Fe2 positive, which are 5 in number, the distribution is like this. Distribution of 6 electrons. Okay, it is 1 2 3 4 5. Sixth electron will go here. If you look, या इधर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली जिस तरह क्रोमियम में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो है इन दो का एक दूसरों को हमें देखना भी नहीं, बिकॉज दे आर जस्ट क्लोज। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नीट एग्जामिनेशन में हमको टाइम भी सेव करना होता है। इस पे काम करोगे, इस पे काम करोगे, इस पे काम करोगे, आपका टाइम काफी वेस्ट करेगा। बेहतर है कि बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है, नीट एक बड़ा एग्जाम है, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। क्लोज जो है ना, क्लोज कंटेस्टेंट्स जो है वो क्रोमियम और आयरन है, इसलिए हमने सीधे इन्हीं पे काम किया। नीट इज ऑल अबाउट सेविंग टाइम। अगर आपको टाइम बचाना आता है बेटा तो आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो क्वेश्चन है वो है बी एंड डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा ऑप्शन है वो है बी एंड डी। क्रोमियम 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, दोनों में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इसलिए इनका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, इस फॉर्मूला में सबक छूट करेंगे बेटा, ये म्यू एस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, ये बराबर होगा, बिकॉज एन का वैल्यू इन दो चीजों के लिए सेम है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा देखा करें, बिकॉज हमारी सेशन का मकसद ये है कि आपको ये भी बताया जाए कि टाइम कैसे सेव करते हैं। टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए हमें, हमको खेलना नहीं इन तीन के साथ, ठीक है। इनमें और इनमें काफी फर्क है, हमको क्लोजली नजर आता है, क्रोमियम और आयरन काफी क्लोज कंटेंट्स है, ठीक है। इसलिए हम इन पे काम करेंगे, इन पे काम करके हमको एक सिंपल आंसर निकल रहा है, दैट इज बी एंड डी। ओके, सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is about the stability of the carbocations. As you can read, the most stable carbocation among the following is. All of us know there are certain rules for the stability of the carbocations, but currently what I can see is carbocation is here or on the base of the degree.
If you look at this carbocation is secondary carbocation, this carbocation is a secondary carbocation, this carbocation is a primary carbocation, this carbocation is a tertiary carbocation. It has highest number of hydrogen atoms. It will have maximum inductive effect as well. In addition, in this very ring there occurs also one more effect that is called as sigma p conjugation, या what we can call bent orbital resonance. कुल मिला के सारे फैक्टर्स फेवर करेंगे ऑप्शन 4 को, यानी कि ऑप्शन 4 वाला जो है बेटा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। यहाँ पे आप सिंपली याद रख सकते हैं एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो इसी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is basically from P block chemistry. Given below are two statements. Statement 1, the boiling point of hydride subgroup 16 elements follows the order: water, hydrogen telluride, H2TE, H2SC, H2S, ये एक ही फैमिली के हाइड्राइड्स है, ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। नाउ व्हाट द एग्जामिनर सेज अस अबाउट इट, स्टेटमेंट पहला जो है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड सब ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो दिस ऑर्डर। हमको देखना क्या रियली सही है कि नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। इसका रीजन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल जो है ना बेटा, इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी रेज हो जाता है, ठीक है। हकीकत में वाटर नहीं आना चाहे यहाँ पे, अगर देखा जाए डायमेंशंस के बेसिस पे, मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पे, बिकॉज आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में है, टीचर सबको पढ़ाते हैं कि जो साइज है वो डिटरमाइन करता मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। उस हिसाब से वाटर में अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली इस हाइड्रोजन टेलोराइड में सबसे ज्यादा होना चाहिए, इस हिसाब से ये सबसे ज्यादा, फिर ये वाटर इधर होना चाहिए। लेकिन वाटर ने बाजी क्यों मारी है, इसलिए वाटर ने बाजी मारी है क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड का ये ऑर्डर है। वाटर इसलिए आगे चला गया बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर हम स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ेंगे, ये लिखता है ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास वाटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर मास क्या करेगा बॉइलिंग पॉइंट को, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा, मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा, उतना वैन डर वाल्स फोर्स होगा। लेकिन इस वाले कांसेप्ट में तो वैन डर वाल्स कांसेप्ट की तो छुट्टी हो रही है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कांसेप्ट आगे निकल रहा है। तो अगर हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास वाटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट दोनों सही है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। ये राइट ऑर्डर है बेटा बॉइलिंग पॉइंट इसका, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज बेसिकली ऑल रिलेटेड टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। मैच करने हमें मॉलिक्यूल्स एक साइड से दिए हैं, दूसरी साइड से इसके शेप्स दिए हुए हैं। सबको पता है कि जो अमोनिया है बेटा ये पैरामिडल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे BrF5 जो है बेटा ये स्क्वायर पैरामिडल होगा, इसके लिए वेस्पर थ्योरी का कांसेप्ट हमें अप्लाई करना है। जो ये वाला मॉलिक्यूल है बेटा ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होगा, SF6 मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन ये वाला स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे अमोनिया के लिए जो है वो पैरामिडल शेप है, BrF5 के लिए स्क्वायर पैरामिडल शेप है, XeF4 के लिए स्क्वायर प्लेनर शेप है, SF6 के लिए ऑक्टाहेड्रल शेप है। ये सारा बेसिकली वेस्पर थ्योरी से है, ठीक है। तो इसमें आप सिंपली चूज करेंगे नीचे वाला कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है, वो खुद लिख ले बिकॉज हमने ऊपर मैचिंग किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन, किसमें सबसे ज्यादा हीलियम एटम्स है। देखो ये तो 4 मोल ऑफ हीलियम एटम्स है, ये हो गया 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 4 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। ओके, हाँ, तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया ये। 4U यानी कि 4 AMU ऑफ हीलियम, ठीक है। ये तो सबसे, ये तो एक एटम की बात यहां पे हो रही है, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम तो खाली 1 मोल हो गया, ठीक है। ये अगर 22.4 लीटर से 22.710 जो भी लिखा तब ये 1 मोल होता, ठीक है। ये तो 1 मोल से भी, ये तो एवोगैड्रो नंबर से कम नंबर है, ये भी सेम है, ठीक है। कुल मिला के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे बेटा वो ऑप्शन नंबर 1 में होंगे बिकॉज वो सीधे 4 मोल है, ठीक है। 4 मोल हो गया 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट
is question number 6. Identify the correct reagents that would bring about the following transformation. It is simple. आपको एक अल्कीन दिया गया है, सबस्टिट्यूटेड अल्कीन दिया गया है, इसको कन्वर्ट किया गया है एल्डिहाइड में। क्या सीधे ये हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसमें सबसे पहले हमें डालना है डाइबोरियन। डाइबोरियन का जो एक्टिव कंपोनेंट है वो BH3 है, ठीक है। वो इसको कन्वर्ट करेगा पहले अल्कोहल में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा पहले अल्कोहल में, अल्कोहल। इसके बाद हमको इसको करना है हम ये बेसिकली डाइबोरियन रिएक्शन जो है ना उसका रिएजेंट है। जो अल्कोहल यहां पे मिलेगा उसको हमने PCC ऐड करना है। PCC आपको टेक्स्ट पे रिएजेंट दिया हुआ है, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जो बेसिकली क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पाइरिडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉम्बिनेशन होती है 1:1:1, ठीक है। तो टाइम सेव करें, ज्यादा टेंशन ना ले। ये बेसिकली पहले इस अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उस अल्कोहल को एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो PCC है ये सिंपली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा 2 ही रहेगा। बिल्कुल NCERT का पॉइंट है, ठीक है। ज्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। हमको देखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज है, कांस्टेंट है। तो कॉमन सेंस है, आइसोथर्मल प्रोसेस बेसिकली जो होती है वो कांस्टेंट टेंपरेचर पे हम करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सी हो गई? आइसोकोरिक प्रोसेस हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सी हो गई? आइसोबारिक प्रोसेस हो गई जो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, ठीक है। अब बच गया एडियाबैटिक प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो करिए मैच, टाइम बचाइए, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकास रिएजेंट? कौन सा वाला अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ सबसे तेज, सबसे फटाफट मिलेगा? हमको पता है ल्यूकास रिएजेंट जो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl, ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। हम चेक करते हैं कि अल्कोहल कौन सा बेसिकली प्राइमरी अननोन अल्कोहल हमको दिया जाता है। हाँ, हमको 3 अल्कोहल्स दिए जाते हैं, हमको बताना पड़ता है कि ये बताओ कि प्राइमरी अल्कोहल कौन है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन है, टर्शियरी अल्कोहल कौन है। इसके लिए हमने ल्यूकास रिएजेंट चूज करना होता है। ल्यूकास रिएजेंट के कुछ ड्रॉप्स हम गिवन अननोन अल्कोहल्स में डालते हैं। हाँ, आप सबको पता है ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं उसमें टर्बिडिटी होती है, वहां पे क्लाउडीनेस जैसी हो जाती है, प्रेसिपिटेट बेसिकली बन जाता है, ठीक है। वो प्रेसिपिटेट अगर फटाफट से बन जाएगा उसका मतलब है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल जो होता है ना वो टर्शियरी होता है इस रिएक्शन में, बिकॉज जो ल्यूकास टेस्ट है ना ये कार्बोकैटायनिक मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा अल्कोहल वो बेटा टर्शियरी अल्कोहल होगा। तो फास्टेस्ट जो रिएक्ट करेगा ऑप्शन नंबर 4 है वो। बिल्कुल NCERT का पॉइंट है, ठीक है। तो NCERT को ही आप समझिए कि NCERT ही हमारे को आती है वहां पे। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल? ठीक है, आपको पता है हमारे पास इक्वेशन है Kp इज इक्वल टू KcRT। Kp इज इक्वल टू Kp और Kc में इक्वेशन जो हमारे पास है, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेल्टा एन का वैल्यू चूज करना पड़ता है। डेल्टा एन वैल्यू जहां पे 0 होता है हमको पता है वहां पे Kp Kc के बराबर होता है। अब हमें पहचानना क्या, कहां पे इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर हम देखेंगे इस वाले में डेल्टा एन, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोल्स देखेंगे वो 2 है, 1 और 1, जबकि रिएक्टेंट के मोल्स बेसिकली 1 है। तो यहां पे ही बेसिकली डेल्टा एन 0 के बराबर, बाकी ऑप्शंस पे जाएंगे ही क्यों, ये 2 - 1 जो है वो 1 के बराबर आ गया। अगर ये 0 के बराबर आता है, यहां पे देखो 2 - 2 0 है, ठीक है। यहां पे देखो 2 - 2 0 है, यहां पे भी 2 - 2 0 है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे हमको ऑप्शन नंबर 1 में ही बेसिकली डेल्टा एन जो है वो नॉन जीरो मिलता है। यही है जहां पे Kp Kc के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम जाएंगे। क्वांटम नंबर्स में से क्वेश्चन है। ये आपके पास क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास है, एजिमुथल क्वांटम नंबर आपके पास है, और आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। कौन क्वांटम नंबर क्या चीज बोलता है? अगर हम सबसे पहले जाएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, ये तो ओरिएंटेशन देगा, तो A को 4 आएगा, वो आप चूज करते रहे, ठीक है, टाइम बचाना है। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, MS हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन जो है वो इससे जो हमारे पास ये है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल हमें बताएगा। MS हमें बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। L जो है, L
ये हमें बताएगा शेप ऑफ ऑर्बिटल। हाँ, एल का वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर आप सबको पता है, जब एल 0 होता है हम बोलते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, जब एल 1 होता है हम बोलते हैं डम्बेल शेप है, सो एंड सो फोर। और जो एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। कैसे बताता है? से अगर हमारे पास 1s है, 2s है, 3s है, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्तलिफ है। जो सबसे बड़ा, और ऑल्दो ये तीन के तीन ऑर्बिटल सेम शेप के है, लेकिन 3s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा है, तो 3s का ऑर्बिटल सबसे बड़ा साइज में होगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब जा रहे बेटा। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स, चूज। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ेंगे, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। बिल्कुल भी नहीं, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आपको पूरा साल पढ़ाया गया होगा, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, कि जो एनिलीन जो हमारे पास है ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। करना तो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन था, ठीक है, लेकिन कुछ और हो रहा है। इसका रीजन है कि जो नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन है, हम सबको पता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है, ठीक है, वो लिगेंड की खसलत दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, यहां पे वो एक नया ही चीज बनाता है, मोस्ट प्रोबेबली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 अगर आप पढ़ेंगे, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। एक्चुअली गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस वंस अगेन एक एनसीईआरटी से रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा। गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस से हम सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन्स, जबकि हमारा एनिलीन जो है ये तो एक एरोमेटिक अमाइन है, इसको नहीं बना सकते। तो क्या सही है? बिल्कुल स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 ये दोनों सही है। ना ही एनिलीन फ्रेडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन दिखाता है, ना ही बेटा एनिलीन हम बना सकते हैं गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस से। तो बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, ठीक है, याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 once again is question about the hydrogen bonding, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सबको पता होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो एक ही मॉलिक्यूल के मुख्तलिफ या मे बी सेम ग्रुप्स के बीच हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एरोमेटिक सिस्टम्स में होती है। और कहां पे होती है बेटा? ये 1-2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशंस पे होती है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन एडजेसेंट पोजीशंस हो गई। ऑर्थो पोजीशन तो हमारे पास ये है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है बेटा। यहां पे तो ये 1-3 पोजीशन 1-4 पोजीशन पे यहां पे नहीं बनेगा, ना ही यहां 1-3 मेटा पोजीशन पे बनेगा। इस HF में तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें इंट्रा नहीं होती है। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग जिसको हम कीलेशन भी बोलते हैं बेटा, वो तो ऑप्शन नंबर 1 में ही होगी, ठीक है। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सबस्टेंस, एक एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। सम सॉलिड सबस्टेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट, जब कोई सबस्टेंस सॉलिड से वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, उसको सब्लिमेशन बताते हैं। कॉमन सेंस ये क्वेश्चन बोलता है, जरा बताइए ये कौन सी टेक्निक है बेटा? ये प्रिंसिपल सब्लिमेशन का है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करे, सीधे एनसीईआरटी का पॉइंट है। नेक्स्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस। आपको बताना है एंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डर कहां पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इन एंट्रोपी कहां पे इंक्रीज हो जाती है? जब लिक्विड इवेपोरेट होता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, ओके। जब टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड का कम किया जाता है तो एंट्रोपी घटती है, ठीक है। इस वाले केस में एंट्रोपी क्या सॉलिड से शिफ्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आपको चूज करना है यहां वाले केस में क्या होता है? गैस तो गैस में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में आते हैं। आपको तो एंट्रोपी का बुनियादी प्रिंसिपल पता होगा, ठीक है। जब कोई मॉलिक्यूलर से एटॉमिक फॉर्म में चला आता है बेटा, वहां पे एंट्रोपी बढ़ती है। एक ही ऑप्शन मुझे नजर आता है जहां पे एंट्रोपी नहीं बढ़ती है, वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहां पे आप टेम्परेचर कम करते हैं। बाकी जो A, C एंड D है, इन तीनों में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है बेटा। बिल्कुल आसान सा एनसीईआरटी रिलेटेड है, नीट के लिए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे हम जाएंगे। अमंग द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, आपको बताना है कि -2 ऑक्सीजन स्टेट कौन नहीं दिखाएगा। टेक्निकल बात है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन की जानिब, ठीक है। पोलोनियम तो अकेला ऑप्शन हमारे पास है जो नहीं बेसिकली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, सिंपल ट्रेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 16
16 पे हम जाते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। ओ ये क्वेश्चन तो सिंपल है, हमको पता है कि टॉलरेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट खासलत में वीक रिएजेंट्स होते हैं और एल्डिहाइड्स काफी सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स फर्दर ऑक्सीडेशन। तो चूज करिए कौन से ऑप्शन में एल्डिहाइड है, ऑप्शन नंबर 4 में, सिंपल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ठीक है। फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा, नेक्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन आता है, नेक्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन आता है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकॉन जो है वो कार्बन से कम है, ठीक है। तो कुल मिला के सबसे ज्यादा ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। A compound with a molecular formula C4H14 has two tertiary carbon atoms, ठीक है। उसका आयुपैक नेम क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट ना करें। एनहेक्सेन तो एक सिंपल लीनियर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे तो कोई टर्शियरी कार्बन हमें होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 1 की, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा दिमाग, हमारी मेहनत, पूरे साल की मेहनत हमें इस ऑप्शन की जानिब ले रहे हैं। इसी को बेटा मैं बता रहा हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पेपर में, जब आपको पेपर्स हम बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी सीखिए साथ साथ टाइम कैसे बचेगा। सबसे पहले आपको ये मॉलिक्यूल जिस पे आपको लगता है ना कि इसी में होंगी, उसी मॉलिक्यूल को खोला करें आप। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन को हम खोल लेंगे, ये हो गया CH3, CH पे CH3 है, ठीक है। यहां पे एक और CH3 है, ठीक है बेटा, ये CH3 है। अब देखिए ये हो गया आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो यहां पे ये टर्शियरी कार्बन है क्योंकि ये कनेक्टेड है 1, 2 और 3 के साथ, इसका भी वही हाल है। तो ऐसे क्वेश्चंस में नीट का बच्चा इसको ट्राई करे, इसको ट्राई करे, वो तो टाइम का वेस्टेज कर रहा है, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर सीधे उस ऑप्शन पे आना है जिसका फेस आपको बोलता है ये है वो ऑप्शन। तो बिल्कुल बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फैलिंग सॉल्यूशन ए, बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। रिएजेंट का नाम फैलिंग सॉल्यूशन ए है और हमारी एनसीईआरटी लिखते हैं वो तो एक्वस कॉपर सल्फेट है, दूसरी बात तो करनी ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। आप जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल रिएक्शंस का क्या कांसेप्ट है, एरिहीनियस इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं। कैन बी कैलकुलेटेड, कब वो हम निकाल सकते हैं? रेट कांस्टेंट तो इजंट इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन नो, ओरिएंटेशन ऑफ रेट नहीं, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेंपरेचर। यानी कि अगर आपको K1 और K2 पता है, आप एरिहीनियस इक्वेशन लिखते हैं ना, log ऑफ K2 by K1 इज इक्वल टू EA by 2.303 और T2 minus T1 by T1 into T2। कुल मिला के आपको रेट कांस्टेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 वाला क्वेश्चन, आपको क्या करना है, आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, यहां से रिएजेंट्स आपको दिए हैं, यहां से रिएक्शन दी हुई है। ये वाला रिएक्शन आपके पास तो सिंपल ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये वाला आएगा, ठीक है। इस वाले रिएक्शन में फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो रही है, इसमें तो ये आएगा, ठीक है। मैच आप खुद करेंगे। इस वाले रिएक्शन में, सी वाली रिएक्शन में क्या चीज हो रहा है, सी वाली रिएक्शन में सिंपली ऑक्सीडेशन हो रही है एक अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की कीटोन में, ठीक है। बच गया ये वाला रिएक्शन, ये तो बेंजालिक ऑक्सीडेशन है, इसके लिए तो सबसे कमाल का रिएजेंट ये है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया वैसे आप इनमें से चूज करिए, ठीक है। नेक्स्ट 22, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। हम सबको पता है कि SN1 रिएक्शन उन सबस्ट्रेट्स में, उन मॉलिक्यूल्स में फास्टेस्ट होती है जहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि वो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाए। तो टर्शियरी अगर आपके पास कहीं पे लगता है कि कार्बोकैटायन बनेगा तो वही सही है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल। अकेला ऑप्शन जो है वो बेटा ये है जहां पे टर्शियरी कार्बोकैटायन क्रिएट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वाला हमारा सही ऑप्शन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसका तो ऑर्डर ये है 3,2 डिग्री 1, ऑर्डर टुवर्ड्स द SN1 reaction. Next 23 question,
विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सी वाली रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर नहीं हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन है नहीं। यहाँ पे देखेंगे आप, जिंक पहले 0 स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे तो 2+ स्टेट में है, यहाँ पे कॉपर +2 स्टेट में है, यहाँ पे तो कॉपर 0 में है, तो हो गया बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। इस वाले में भी देखिए, इसमें आयोडीन पहले 0 है में, फिर -1 में है, यहाँ पे क्लोरीन -1 में है, फिर 0 में आ गया। यहाँ पे भी सेम है, हाइड्रोजन 0 में है, क्लोरीन 0 में है, अब हाइड्रोजन +1 में है, क्लोरीन -1 में है। इसमें देखो बेरियम पहले भी +2 है, अब भी +2 है, सोडियम पहले भी +1 है, अब भी +1 है, क्लोरीन पहले भी -1 है, अब भी -1 है, सल्फेट पहले भी -2 है, अब भी -2 है। तो राइट ऑप्शन ये है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज ऑक्सीडेशन नंबर इसमें नहीं हो गई। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, the boiling point of 3 isomeric pentanes follows the order। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन है। एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोपेंटेन से ज्यादा है नियोपेंटेन। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, ये 100% सही है। इसका क्या स्टेटमेंट 2 में एक्सप्लेनेशन है वो चेक करना है। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल अटेन्स द शेप ऑफ द स्फीयर, कॉमन सेंस है, हमने एनसीईआरटी अच्छे से अगर पढ़ी है, वहां पे वो बोलता है जो लीनियर मॉलिक्यूल्स है, स्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है, वहां पे बेसिकली ज्यादा पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मॉलिक्यूल्स के बीच है, वहां पे ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे। लेकिन जितनी ब्रांचिंग हो जाती है ज्यादा, मॉलिक्यूल का एरिया कम हो जाता है, वो स्फेरिकल शेप बेसिकली अचीव करता है। लिटरली फिजिक्स के वर्ड्स में बताएंगे तो सरफेस टेंशन बेसिकली बढ़ जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया फॉर कांटेक्ट ड्यू टू व्हिच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक, thereby lowering the boiling point। in the light of the above statements choose the most appropriate answer। तो appropriate answer तो यही है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आएंगे बेटा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वाह वाह, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है CONH3 जिसमें अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और आपको दिया है COF जिसमें फ्लोरीन वीक लिगेंड है ना बेटा। अमोनिया ऑल्दो एक बॉर्डर लाइन लिगेंड है, लेकिन इन केसेस में जहां पे पेयरिंग अप हो जाएगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ना रहेगा, वहां पे अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो F नेगेटिव बेटा एक वीक लिगेंड है, ये तो पेयरिंग करेगा ही नहीं, एक वीक लिगेंड है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्या है, ये बोलता है और ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल ये तो ऑक्टाहेड्रल होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, कुल मिला के दोनों, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होंगे, बट दे डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर 100%। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका कॉम्प्लेक्स में पेयर सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये डायमैग्नेटिक होगा, देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन है। लेकिन ये वीक लिगेंड है, इसके इस वाले कॉम्प्लेक्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं हो जाएंगे, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। तो पढ़ेंगे क्या सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बिल्कुल सही है, हाँ सही स्टेटमेंट। ये ऑक्टाहेड्रल है, इसके लिए सिंपल चाल आपको करनी है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, यानी कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। रिमेंबर ये हमेशा ऑक्टाहेड्रल होते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक बिहेवियर में इसलिए डिफर करते हैं क्योंकि लिगेंड एक में स्ट्रॉन्ग है, दूसरे में वीक है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट ऑप्शन है। तो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। मैच करना है, क्या करना है, लिस्ट ए में मॉलिक्यूल दिया है, लिस्ट बी में नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ये खाली कार्बन एटम्स की बात करता है। ईथेन मॉलिक्यूल में हमको पता है, आपको क्या बताया है ना, सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं। ईथेन मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन में बस एक सिग्मा बॉन्ड है। ईथेन मॉलिक्यूल में क्या है, ये तो ईथेन था। ठीक है, ईथीन मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, ईथीन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा है तो दूसरा पाई है। मजे की बात यह है, कार्बन का मॉलिक्यूल अकेला मॉलिक्यूल है, कार्बन C2 का मॉलिक्यूल जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ये बिल्कुल एनसीईआरटी पे है। ठीक है, ये एनसीईआर, ये अकेला मॉलिक्यूल टोटल केमिस्ट्री में है जहां पे दोनों बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी जस्टिफिकेशन कई सारी चीजों से आती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पिक्चर्स से, बॉन्ड एनर्जी से। कुल मिला के C2 मॉलिक्यूल में दोनों पाई बॉन्ड्स, जो डबल बॉन्ड है दोनों पाई बॉन्ड्स है। ठीक है, और इथाइन आपका लास्ट वाला है, इथाइन हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C। आपको खाली बताना ना कार्बन और कार्बन के बीच क्या है। यहां पे इस वाले केस में बेसिकली क्या चीज है, यहां पे एक बॉन्ड सिग्मा है, बाकी
पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। तो आप आराम से मैच करिए। तो यहाँ पे तो देखना ही नहीं है, इथेन मॉलिक्यूल में हमें कार्बन और कार्बन में बस एक सिग्मा बॉन्ड निकला, पाई बॉन्ड कोई भी नहीं मिला, ठीक है। वो आप यहाँ से चूज करेंगे। इथेन मॉलिक्यूल में आपको एक सिग्मा और एक पाई मिला, ठीक है। जबकि कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है, C2 का मॉलिक्यूल। यूजुअली जब डबल बॉन्ड होता है ना बेटा दो एटम्स के बीच, जैसे N2 में है या इथेन में है, एक पाई एक सिग्मा होता है। बट आपकी एनसीईआरटी भी लिखती है C2 एक अकेला मॉलिक्यूल है जहां पे दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। शायद एग्जामिनर का इंटेंशन ही यही है कि ये क्वेश्चन यहां पे रखा हुआ है। लास्ट में जो इथाइन है इसमें तो सीधे एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा और दो पाई होता है, ठीक है। यहां से आपका आंसर है, मैचिंग आपका काम है। नेक्स्ट 27 हेनरीज लॉ कांस्टेंट, सॉल्यूशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट के कुछ गैसेस के दिए हुए हैं, ए बी सी गैसेस है जिनके हेनरीज कांस्टेंट दिए हुए, किसी का 145 है, किसी का 2 × 10⁻⁵ है, किसी का 35 किलो बार है। अब आपको बोलना है सॉल्युबिलिटी किस ऑर्डर में होगी। बेटा जो हेनरी कांस्टेंट है ना, आपने सॉल्यूशन केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में टीचर से हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा होगा, हेनरीज कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। जिसका जितना ज्यादा होगा ना हेनरीज कांस्टेंट, उतना वो कम सॉल्युबल होगा, और जिसका जितना कम होगा हेनरी कांस्टेंट उतना वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। सबसे कम वैल्यू तो मैथमेटिकल हिसाब से ये है, तो बी ज्यादा सॉल्युबल होगा। उसके बाद 145 और 35 में कौन छोटा नंबर है, 35, वो किसका है, सी का, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, ए। यानी कि सॉल्युबिलिटी कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगी, बी सी है कोई ऑप्शन, बिल्कुल ये ऑप्शन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाँ नीट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 28 द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n is equal to 1 for helium positive ion is -x joules, then that of an electron the n is equal to 2 state for the beryllium 2 positive ion is। इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास एनर्जी है that is -13.6 into z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अगर आप देखेंगे इसने चाल करी है, ठीक है, इसने क्या किया है, हीलियम आयन के लिए दी हुई है। फिर आपको बोलना है कि दूसरी स्टेट जो B2 पॉजिटिव की है उसमें क्या आ जाएगा। उसमें अगर आप करेंगे वो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। बेरिलियम का बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, हाँ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, ठीक है, वो हो गया 4 स्क्वायर, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे n से, n तो हो गया 2 स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये आंसर फिर से बेसिकली इसी पे पहुंचेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हीलियम के n = 1 में वो अगर x है तो इसकी एनर्जी भी सेम होगी। सोचना नहीं है, बोहर्स मॉडल का क्वेश्चन है, -x जूल्स ही आंसर आएगा। And question number 29 an increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ा हो गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप A + B एक रिएक्शन कर रहे हैं जो प्रोडक्ट P बना रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे, एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी ना उस पर डिपेंड करेगी। हीट ऑफ रिएक्शन को क्या फर्क पड़ेगा, काइनेटिक्स का जहां तक सवाल है नहीं तो, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, पार्टिकल नंबर जब बढ़ेगा ना बेटा, कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी, बिकॉज कोल्यूजन फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिफाइन करते हैं, number of collisions, binary number of collisions taking place between the reacting particles per second per unit volume। हाँ reactant बढ़ाएंगे तो collision frequency बढ़ेगी। नेक्स्ट मैच करना है आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए गए हैं, यहां पे दूसरे कॉलम में आइसोमेरिज्म्स दिए गए हैं, किसमें क्या आइसोमेरिज्म हो सकती है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये वाला कंपाउंड आपके पास है NO2 लिगेंड, एक बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है बेटा, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड, यहां पे लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगी, तो A का तो सेकंड बनता है। ये तो यहाँ पे सल्फेट आयन अंदर है, यहाँ पे ब्रोमीन बाहर है। हमको टेक्स्ट बुक में लिखा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड्स में होती है जहां पे लिगेंड खुद एक पोटेंशियल आयन हो, पोटेंशियल जो काउंटर आयन है वो खुद पोटेंशियल लिगेंड होता है। ब्रोमीन अगर अंदर जाएगा ये लिगेंड बनेगा, तो बेसिकली उस वक्त सल्फेट आयन बाहर आएगा, तो बेसिकली ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। अब ये वाला जो है तो सिंपल कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ये वाला तो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है। ये आपका आंसर है, मैचिंग में दिखे आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बनता है, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज, यानी कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसके पास है, ठीक है।
लिथियम तो इसमें एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 का है, ठीक है। साइज की बात करेंगे तो बोरान की से कम होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये में इसमें सोचना ही ना ज्यादा नहीं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, ये आएगा, ठीक है, एनसीईआरटी रिलेटेड। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। आई एम हाईली एक्सपेक्ट, ये जो क्वेश्चन है मुझे लगता है कि आना चाहिए, कई साल से मैं देख रहा हूं कि इस रिलेटेड क्वेश्चन आता ही नहीं है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत सारी है होती किसी एलिमेंट की, चाहे आयनेशन एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेकिन एक ऐसी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो वेरिएबल है, जो डिपेंड करती है बेसिकली एलिमेंट हमारा, एटम हमारा किस सिचुएशन में है। सपोज अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि मुख्तलिफ है, उसकी वजह से इस एटम और इसकी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएबल क्वांटिटी बिल्कुल है, वेरिएबल क्वांटिटी। रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन, डेफिनेटली ऑक्सीजन स्टेट पे भी डिपेंड करता है, अगर आप, और हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास FeCl3 है और अगर आपके पास FeCl2 है, कल को आपको बताया जाता है किस वाले आयरन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। जब चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ने ही डिटरमाइन कर दिया कि यहाँ के आयरन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एट द सेम टाइम हाइब्रिडाइजेशन, हमको तो पता है sp हाइब्रिडाइजेशन में जो S कैरेक्टर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद sp2 आता है, इसके बाद sp3 आता है। तो रूल है ना, S कैरेक्टर जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है नहीं। अनलाइक आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन स्टेट पर डिपेंड कर 100% करते हैं डिपेंड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर आपको FeCl3 और FeCl2 में देखना है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयरन की कहां पे, यहां पे है, बिकॉज़ 3 पॉजिटिव सिंपली विल exert more attractive force on the electron cloud as compared to 2 positive. Next, क्या हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करती है? 100% डिपेंड करती है, जिसके लिए हमारे पास रूल है S कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। ये वजह है कि अल्काइन्स में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, आपने पढ़ा होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये sp2 है, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड का sp3 है। तो इसी बेसिस पे हम बोलते हैं ना सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास अल्काइन्स है। तो बेटा इसमें असर्शन एंड रीजन जो है ना वो करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट फॉर, ये रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, किस चीज की, ऊपर वाले फैक्ट की। हमारे क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपके सामने है। तो बेटा हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। सो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 33 पे हम आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्राइटेरिया कंडीशंस कई सारे हैं, लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हम वहां पे बेसिकली बताते हैं कि साइज, पोलैरिटी वो ऑलमोस्ट एक जैसे अगर होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अदरवाइज हमको पता है कि प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 पे नजर दौड़ाएंगे, ये तो इथेनॉल है और वाटर है, इनमें तो बहुत ज्यादा फर्क है साइज में, पोलैरिटीज में। नाइट्रिक एसिड और वाटर में भी तो वही सीन है, क्लोरोफॉर्म और एस्टोन में भी वही सीन है। यहाँ पे बेंजीन और टॉलिन जो है बेटा, बेंजीन और टॉलिन जो यहाँ पे है ये क्लोज ऑप्शन है, बिकॉज बेंजीन टॉलिन ऑलमोस्ट एक ही डायपोल मोमेंट इनका है, एंड एडिशन टू दिस साइजेस भी ऑलमोस्ट हमने बताएंगे आइडेंटिकल है, सिमिलर है। तो आइडियल सॉल्यूशन की जो क्राइटेरिया है वो खाली फुलफिल हो जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो 33 का बेटा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद द इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन विल गिव। प्रोपेनामाइड कौन सा मॉलिक्यूल है? इट इज CH3CH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये एक एमाइड है। तो एमाइड पे जब हम ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ऐड करेंगे ब्रोमीन, तो नजर आता है आपको ये कौन सी वाली रिएक्शन है? ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, HBD रिएक्शन जिसको आप बताते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब है एक कार्बन एटम इसमें कम हो जाएगा। हाँ, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जो बड़ी फेमस रिएक्शन है, एनसीईआरटी लिखती है, हम पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो फाइनल कंपाउंड मिलता है ना बेटा, वो एक प्राइमरी अमाइन मिलता है, और इस प्राइमरी अमाइन में एक कार्बन एटम एमाइड से कम होता है। तो अगर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन वो है जिसमें 3 कार्बन से एक यानी कि कम है 2 कार्बन है, वो तो सीधे इथाइल अमाइन निकलता है। तो हमारे 34 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट पे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोडक्ट्स ऑफ
प्रोडक्ट्स ए एंड बी ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शंस रेस्पेक्टिवली आर। आप एक अल्कोहल पे ऐड कर रहे हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, वहां पे क्लोरो अल्केन निकलता है। तो ए कौन सा चीज है बेटा? ए बेसिकली H3PO3 है, ठीक है। और इसमें आप अल्कोहल पे PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऐड कर रहे हैं, ये तो क्लोरो अल्केन मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये कौन सा चीज है बेटा? ये POCl3 है। तो ये बिल्कुल NCERT में अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में सीधे रिएक्शन है। नेक्स्ट 35 के बाद हम 36 पे आ रहे हैं। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग करंट इतनी दी हुई है, ठीक है, थ्रू वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट फॉर 100 सेकेंड्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, वट एवर, हमको यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इस्तेमाल करना है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में जो इक्वेशन है दैट इज E इज इक्वल टू F इंटू डब्ल्यू बाई आई इंटू टी, ठीक है। E हम सबको पता है इक्वलेंट मास है, वो हम निकालेंगे कॉपर का, इसको वैलेंस को डिवाइड करके। F हमारे पास फैराडे कांस्टेंट है, वो तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। W हमको बेसिकली हमें क्या करना है, हमें निकालना है, यही W हमें निकालना है। दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। करंट हमारे पास दी हुई है, कितनी करंट इतनी एम्पेयर्स पास करी जाती है, ठीक है। और टाइम कितना है बेटा? 100 सेकेंड्स। तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो W किसके बराबर आएगा? W आएगा बराबर E इंटू आई इंटू टी, ओके, डिवाइडेड बाय F, ठीक है। ये E क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है कॉपर का, वो कितना आएगा? 63 को डिवाइड करना है 2 से। क्यों? बिकॉज किसी भी सबस्टेंस का इक्विवेलेंट वेट जो है, हाँ, यहाँ पे वो आएगा, उसका क्या एटॉमिक मास है, वो डिवाइड करना 4 से, ये 31.5 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इस 31.5 को सबस्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, W इज इक्वल टू E हो गया अब 31.5। करंट आपने बेटा 100, करंट आपने 9.6487 एम्पियर्स पास की है। टाइम आपके पास है 100 सेकेंड्स। डिवाइड आप करते हैं किससे? 96487 से। ये इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये पॉइंट तो इधर आएगा, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट हटेगा, ठीक है। तो आंसर सिंपली आपके पास ये वाला आता है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें करना ही नहीं है कुछ, ठीक है, बस आपके पास फॉर्मूला, मैथमेटिक्स आप करें। नेक्स्ट हमारे पास है 37 क्वेश्चन, जो कि बायोमॉलिक्यूल्स में से है। आपको बोलना है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? माल्टोस तो नहीं है, लैक्टोस तो नहीं है, ग्लूकोज, सक्रोज, इसलिए क्योंकि इसमें फ्री कार्बोनाइल ग्रुप्स नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ये बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी आपके पास ये क्वेश्चन है। 38 वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन है, आप एक आयोडो अल्केन को सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बनेगा यहाँ पे नाइट्राइल। उस नाइट्राइल को आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, बनेगा एमाइड। एमाइड पे आप फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन डालते हैं, बनेगा फिर से, ये तो फिर से हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है, ठीक है। यानी कि आपके पास बेसिकली बनेगा क्या? वंस अगेन आपको बेटा वो कंपाउंड मिलेगा, पहले साइनाइड ने क्या दिया था? एक कार्बन एक्स्ट्रा बन गया था। अगर ए की बात करेंगे, वो तो बना था CH3 CH2 CH2 CN, ठीक है। इसके बाद ये एमाइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एमाइड में अब बेसिकली 4 कार्बन है। जब आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करोगे, वंस अगेन एक कार्बन कम हो जाएगा ना, तो बेटा अच्छा क्वेश्चन है, प्रोपाइलामाइन इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट 39, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर पहचानना है। द 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। ओजोन के तो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, पॉसिबल ही नहीं है। BF3 का तो जीरो डाइपोल मोमेंट है, ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे वेक्टर्स जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के, वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है।
तो नेट रिजल्टेंट यहाँ पे 0 आएगा। डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अमोनिया, गलत बात है, अमोनिया का ही डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से। क्यों? क्योंकि NF3 में वंस अगेन इस तरह की कैंसिलेशन हो जाएगी वेक्टर्स की, जबकि अमोनिया में कोई कैंसिलेशन नहीं होगी। ठीक है, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 नेगेटिव। कुल मिला के खाली ये ऑप्शन राइट है। कार्बोनेट आयन के तो 3 ही कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाकी 3 के 3 ऑप्शंस, पहले 3 जो वो गलत है, खाली चौथा बेटा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40th। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। CONH3 इज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो गए जहां पे लिगेंड्स एक जैसे होते हैं, व्हेयरएज दिस इज अ हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जैक्टली, क्योंकि हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है जहां पे लिगेंड्स मुख्तलिफ होते हैं। क्या सही लग रहा है आपको? Complex statement second, complex this has only one kind of ligand but this has more than one kind of ligand, common sense है, तो statement 1 भी करेक्ट है। होमोलैप्टिक सेम लिगेंड होते हैं, हेटेरोलैप्टिक डिफरेंट लिगेंड्स होते हैं। नेक्स्ट एक रिएक्शन आपके सामने है, इसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट को इस्तेमाल किया हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे सीधे क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा, यानी कि ये 2 टाइम्स इसी का एसिड मिलेगा, वो ऑप्शन नंबर 2 है, बट यहाँ पे ये 2 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, सिंपल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। ठीक है, अल्कला हमारे पास एसिडिक MnO4 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके पास बेटा ये मिलेगा। नेक्स्ट is 42, which statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? हाइपर कंजुगेशन रिकर्स अ पाई बॉन्ड, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पाई बॉन्ड वालों में भी होती है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि पाई बॉन्ड होना जरूरी है। कार्बोकैटायन में तो कोई पाई बॉन्ड होगा ही नहीं, सपोज वहां पे तो हाइपर कंजुगेशन होगी। हाइपर कंजुगेशन रिक्वायर्स एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, फिलहाल ये सही है, लेकिन नेक्स्ट को भी पढ़ेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीज देन, बिल्कुल बात ये तो जरूरत है ही नहीं। हाइपर कंजुगेशन डिक्रीज स्टेबिलिटी, गलत बात है, हाइपर कंजुगेशन तो इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी। तो अकेला स्टेटमेंट जो करेक्ट है ना वो ये है, ये बुनियादी रूल है ना हाइपर कंजुगेशन का। हम बताते रहते हैं आपको बेटा, जिन मॉलिक्यूल्स में अल्फा हाइड्रोजन एटम है वही हाइपर कंजुगेशन दिखाएंगे। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 42 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट? रिएक्शन रेट किससे स्लो डाउन हो जाएगी? कैटालिटिक प्रमोटर से? नहीं, वो तो कैटालिस्ट प्रमोटर तो रेट इंक्रीज करेंगे, होमोजेनस कैटालिस्ट नहीं, तो कैटालिस्ट तो जनरल उस चीज का नाम है जो रेट बढ़ाएगा। ठीक है, कैटालिटिक पॉइजन डेफिनेटली इनहिबिटर्स होते हैं। कैटालिटिक पॉइजन इज बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन कम करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक कंपाउंड हमारे पास है, इसमें PbR3 हमने कर दिया, तो क्या बनेगा? ए सिंपल, यहाँ पे OH ब्रोमीन से हटेगा, तो ऑप्शन नंबर फिलहाल ये वाला मॉलिक्यूल। और फिर हमने इसको अल्कोहलिक KOH डाला, अल्कोहलिक KOH तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, एलिमिनेशन करेगा, तो वहां से बेसिकली अल्कीन बनेगा। वो अल्कीन तो सामने है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। पहले हेलोजिनेशन, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, उसके बाद एलिमिनेशन हो रही है, तो ए ये वाला कंपाउंड है, बी ये वाला कंपाउंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे 45। of the following elements which one has the same oxidation state in all of its compound? कौन सा एलिमेंट वो है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट तमाम कंपाउंड में एक जैसा है? बस वो तो मोहब्बत फ्लोरीन है। फ्लोरीन अकेला एलिमेंट है जिसका एक कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, वो है -1, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 45 के बाद 46 पे आएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0? ये बुनियादी रूल है। ठीक है, एनसीईआरटी में है, टीचर आपको पढ़ाते हैं कि जब कोई एटम, जब कोई एलिमेंट अपनी फ्री एलिमेंटल स्टेट में होगा, ठीक है, उसकी जो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 है। अगर हम देखेंगे उन ऑप्शंस में नजर दौड़ाएंगे, खाली सोडियम है जो अपने फ्री एलिमेंटल स्टेट में है। ठीक है बेटा, तो यहां पे इसकी 0 लेनी है। आप बोलेंगे हाइड्रोजन भी नहीं, हाइड्रोजन का H2 जो है ना उसका 0 लेना है, ना कि H का। तो सोडियम अकेला ऑप्शन है जिसको 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 हमारे पास है, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है PtCl2 En2S2 पॉजिटिव। इसमें आपको बोलना है ऑप्टिकल एक्टिविटी कब होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होगी। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसमें सिस और ट्रांस 2 आइसोमर्स होते हैं। जब हम सिस और ट्रांस का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे ना, ट्रांस आइसोमर में एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है,
ट्रांस आइसोमर, मैं ग्राफिकल डायग्राम बनाऊंगा। ट्रांस आइसोमर जो हमारे पास है बेटा, यहां पे एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है जो बेसिकली बाइसेक्ट करता है मॉलिक्यूल को, दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इस वजह से इसमें एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी नहीं, फिर किसमें होगी, सिस आइसोमर में होगी, क्योंकि इसमें मिसिंग है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन कई बार नीट में आ चुका है, फिर से नीट में आने की चांसेस है इसको, ठीक है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर किसके पास सबसे ज्यादा है, जिसके पास सबसे वीक बॉन्ड है। तो सबसे वीक बॉन्ड किसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड में। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। सबसे रिडक्शन क्या हो गया, फिलहाल अगर हम यहाँ पे बोलेंगे रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सबसे फटाफट कौन देगा, HI। तो HI हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो नेक्स्ट बेटा 49, the basic character of hydrides of the nitrogen family element is decrease in the order। नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स में सबके पास है लोन पेयर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस वो होगी जिसपे लोन पेयर की जिसपे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम में है ना, वो सबसे ज्यादा होगी। वो डिपेंड करेगा साइज पे, जितना छोटा एटम उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हम सबको पता है, हम जब जाएंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, जब हम ऐसे जाएंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे है, फिर इस पे, फिर इस पे। तो आप हाइड्राइड चूज करिए, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, बिकॉज अमोनिया में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। आपको एक रिएक्शन दी गई है इक्विलिब्रियम पे, रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई है। ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि यहाँ पे बता रहा है साथ हीट निकलती है। आपको बोलना है SO3 का यील्ड जो है ना, ये मैक्सिमम कब होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप सबको पता है, ले चाटलियर प्रिंसिपल बोलता है टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर मुझे दो ऑप्शंस में मिल रहा है, लेकिन मसला है यहाँ पे बेसिकली जो रिएक्शन है ना, ये प्रोसीड होते हैं विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि यहाँ पे है ना नंबर ऑफ मोल्स कम, यहाँ से है ना 2 + 1 3, यहाँ पे है ना 2। तो प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो ये बढ़ेगा। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर अगर कोई ऑप्शन है बेटा, वही सही है जो आपका यील्ड बढ़ाएगा। सो दिस फिनिशेस योर सैंपल पेपर। तो बेस्ट ऑफ लक।